How are you? Today we are going to learn a new composition, the day when everything went wrong. So let's start with our composition. Misfortunes come uninvited and unexpected, and they never come singly. They come in battalions. Last Saturday, they befell me thick and fast. Everything went wrong that day. My mother shook me out of deep sleep at the early hour of 5 in the morning and told me that as our milk boy had failed to turn up, I must run to the milk booth and get the milk. I ran to the milk booth with two empty bottles and the necessary money. I exchanged the empty bottles for two full ones and paid the price. On my way, I skidded over a banana skin and went down. The bottles smashed to pieces and the milk spilled all over the pavement. Arriving home with a painful limp, I reported the mishap to my mother, who promptly complained to father. Both of them scolded me severely for being an irresponsible young idiot. I had to go without my tea, which gave me a headache. When it was time for my bath, I entered the bathroom and put my right hand into the bucket of water. I withdrew it the next instant. Mother had forgotten to add cold water to the very hot water. I had been scalded nastily. I thought I would not go to the school that day because of all this trouble. But I was wrong. Father insisted on my attending school. He shouted at me and said he did not pay such high fees in school for me to stay at home and break milk bottles. And so I had to limp all the way to school. The pain of the scald in my right hand was unbearable. Yes, I bore it all silently. At school, the boy sitting next to me gave me a wicked pinch which made me cry out in pain. The teacher thought that I was causing nuisance and drove me out of the classroom with my books. Seeing me standing outside the classroom, the school principal, who was on his daily round, inquired with my class teachers and promptly sent me back home. When I reached home, I saw that the door of my house was locked. My neighbor told me that my mother had gone to visit my aunt and she would only return in the evening. I deposited my books on the doorstep. I saw my friends playing and so I joined them. But my limp grew all the more painful. I went back to the doorstep, but alas, my books had disappeared. My companion left me after a while. I sat on the step with my hat in my hands, patiently waiting for my mother to return. It was indeed a day on which fate had conspired against me to make me most miserable. So, student, ये
तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, जैसे कि बदकिस्मती कभी भी बता के या बोल कर नहीं आती, और वो कभी भी अपना साइन भी देकर नहीं आती है। जैसे कि दे कम इन, बहुत सारी एक साथ में चली आती है। जैसे कि लास्ट सैटरडे उसके साथ में ऐसा हुआ कि अचानक उसके साथ सब कुछ गलत हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग दैट डे। तो मदर ने उसको अचानक नींद में से उठी और उठकर उसको बोली कि बेटा जाके मेरे लिए आज दूध वाला नहीं आया तो जाके तुम दूध ले आओ। तो वो भागकर दूध लेने चला जाता है, मिल्क बूथ। तो जब उसकी माँ उसे दूध लेकर आने के लिए बोलती है और वो मिल्क बूथ जाता है भागते भागते, और 2 खाली बॉटल अपने साथ ले जाता है दूध लेकर आने के लिए। तो वो 2 बॉटल देता है और पैसा देता है और दूध भी ले लेता है। और जब वो वापस आने लगता है तो जो केले का छिलका रहता है उस पे उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से क्या होता है कि बॉटल ज़मीन पर गिर जाता है और सारा दूध ज़मीन पर फैल जाता है। तो उसके बाद वो जब घर पहुँचता है बहुत दर्द के साथ, तो वो अपनी माँ को ये सब बात बताता है। तो माँ क्या करती है कि सारी बात उनके पापा को बता देती है। तो पापा और मम्मी दोनों मिलकर उसे बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि तुझे ज़रा भी ज़िम्मेदारी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके उसे खूब चिल्लाते हैं। और उसकी वजह से उसे चाय भी नहीं मिलती और वो बिना चाय के घर से निकल जाता है स्कूल के लिए, और उसकी वजह से उसके सर में बहुत दर्द होता है। फिर उसके बाद वो नहाने जाता है। तो नहाने जाने के लिए जैसे ही वो बाथरूम में घुसता है तो बाथरूम के बकेट में पानी भरा हुआ रहता है। तो लेकिन वो चेक ही नहीं करता है कि वो गर्म है कि ठंडा है। मम्मी उसके अंदर क्या करती हैं, गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिलाना ही भूल जाती हैं, और वो अचानक से वो पानी, जो गर्म पानी रहता है, उससे वो नहाने के लिए अपने बदन पे डालता है, और उसकी वजह से उसका पूरा जो शरीर रहता है वो एकदम जलने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं उसे। हम लोग का कोई हाथ जल जाता है, देखो पानी में, गर्म पानी में हाथ डालते तो कैसे रेड हो जाता है, वैसे उसको पूरा जलने लग जाता है। तो वो सोचता है कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा आज के दिन, पर उसका जो सोचना था वो गलत हो जाता है। क्यों और कैसे, यह तो पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल की छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और वो उन्हें चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं मैं स्कूल का इतना सारा फ़ीस भरता हूँ, इसके लिए नहीं भरता हूँ कि तुम घर पे बैठो और जाके दूध के बॉटल गिरा के फोड़ कर आओ, तो तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि उस दर्द के साथ वो स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन उसके जो राइट हैंड में जो गर्म पानी का चटका लगा होता है वो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है, पर फिर भी वो उसे बर्दाश्त करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल में जाके अपने दोस्तों के साथ मतलब बेंच पर बैठ जाता है, तो जो उसका बाजू में उसका दोस्त बैठा होता है वो क्या करता है, उसे चिमटी ले लेता है। आपको सबको तो पता ही होगा, हम लोग सब लोग मस्ती तो करते ही रहते हैं। तो वो उसे चिमटी ले लेता है, लेकिन उसी जगह पे ले लेता है जिस जगह उसका हाथ जला होता है। तो वो क्या करता है कि ज़ोर से चिल्ला के रोने लग जाता है। तो टीचर को लगता है कि ये ऐसी नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, और इसका हमेशा का नाटक हो गया है। तो उसे क्या करती है, किताबों के साथ क्लास के बाहर निकाल देती है। तो जब वो क्लास के बाहर खड़ा रहता है तो प्रिंसिपल राउंड पे आती है। आप सबको तो पता ही होगा प्रिंसिपल कैसे राउंड पे आती है। तो जब प्रिंसिपल राउंड पे आती है और उसको देखती है कि वो ऐसे मतलब क्लास के बाहर खड़ा है, तो उसके बारे में सब पूछती है कि क्यों ये क्लास के बाहर खड़ा है, क्या हुआ इसको। तो जब सब कुछ पता लगाने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, तो उसे घर भेज देती है। जब उसे घर भेज देती है और वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा लॉक है। तो जब वो बाजू वाले को पूछता है कि दरवाज़ा क्यों बंद है, तो बाजू वाले बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी आंटी के यहाँ गई है और वो शाम तक ही घर आएगी। बुक जहाँ रखता है वो उसका बुक भी घूम जाता है उसी दिन। पता नहीं उसके साथ वो दिन, बोलते हैं ना कि कोई कोई दिन ज़िंदगी का ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं वापस से कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन हमको देखना ना पड़े। तो वो वापस क्या करता है, जब उसका बुक गुम जाता है और वो दरवाजे पे बैठ के वो दर्द के साथ वहाँ दरवाजे पे बैठा रहता है, हाथ सर पे रख के, मतलब जैसे हम लोग सर पकड़ लेते हैं ना कि अरे यार बस हो गया अब कुछ नहीं। तो वो सर पे हाथ रख के आराम से बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसकी माँ कब आए और वो कब उस घर के अंदर जाए, बोलते हैं ना पेशेंटली। और वो ये भी सोचता है कि किस्मत वापस से ऐसी कभी ना हो और कभी भी मुझे ये दिन ना देखना पड़े। तो आप सब लोग ये समझने मतलब बताने का यही है, मतलब इससे कि हम सबके लाइफ में ऐसा दिन आता है, लेकिन बोलते हैं ना कि उसको कैसे हैंडल करना है, ये हम लोग को उससे सीखना है। तो हम लोग मतलब बोलते हैं ना, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करना है हमें, अपने पेरेंट्स से या किसी और से नहीं, खुद से प्रॉमिस करना है कि हमारे लाइफ में भी अगर कभी ऐसा दिन आया तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ना कि उससे भागने की। और ये जल्दबाजी में उस लड़के ने सब कुछ किया, अगर हम लोग वो आराम से करता तो ये सब उसके साथ होता ही नहीं। वो आराम से दूध लेने जाता तो वो केले का छिलका देखता तो वो फिसलता ही नहीं। और वो दूसरी बात, जब वो पानी से उसका हाथ जल गया तो वो अगर पानी को हाथ से टच करके देखता तो उसका हाथ कभी जलता ही नहीं, और वो उसके बदन पे
गर्म पानी गिरता ही नहीं। और वो जो स्कूल में उसके फ्रेंड ने किया, तो अगर वो पहले से मस्ती करता होगा तभी उसके फ्रेंड ने उसके साथ मस्ती किया, तो अगर वो फ्रेंड से मस्ती करता नहीं तो फिर उसका दोस्त उसको पिंच नहीं करता, और पिंच नहीं करता तो फिर वो रोता नहीं, और रोता नहीं तो क्लास के बाहर टीचर उसको निकालती नहीं। तो यही इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिस जगह पे जो टाइम है उसे हमें यूज़ करना है और उस चीज़ को मिस यूज़ नहीं करना है। समझ गए? तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं।